دل سے آج لے ان قائد آپ کے دلوں کی دھڑکن میری مراد خلیق الزمان چودھری صاحب اس اسٹیج پر تشریف لائیں گے آپ کے ناموں کی گونج میں لبیک لبیک نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سانسوں میں ہے تازگی، نگاہوں میں ہے روشنی، سانسوں میں ہے تازگی، نگاہوں میں ہے روشنی، صلی اللہ کے نام سے راہوں میں ہے روشنی، اور ملتی نہیں ہے اس قدر، ملتی نہیں ہے، جائیں دنیا والے جا کے دیکھ لیں۔ اور ایک زمانہ گزر گیا، طویل مدت گزر گئی، لوگوں کو راہوں میں یہ دیکھتے ہوئے، یہ سنتے ہوئے وہ کس طرح کے نغمے گا رہے ہیں، وہ کس طرح کی موسیقی گا رہے ہیں، لیکن تسکین قلب کسی کو حاصل ہوا؟ کہیں کسی کو اطمینان قلب حاصل ہوا ان نغموں کو سن کے؟ کہیں کسی قلب میں کو امن و راحت اور سکون ملا تو بتائے؟ نہیں، ملتی نہیں ہے اس قدر سارے زمانے میں جس قدر ملی ہے یا رسول اللہ آپ کی پناہوں میں روشنی۔ اہلیان رڑا اور بوا، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نوجوانوں کو فیصل علی ایڈوکیٹس، عمر رشید قریشی، عدنان رضوی، حافظ ظہور سلطان صاحب نے تلاوت کلام پاک کی، میرے عزیز فرحان نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کیا، اور بھی صاحبزادہ رمضان قاسم صاحب اور دیگر احباب نے خیالات کا اظہار کیا۔ میرے بعد تحریک لبیک کی ایک توانا، مضبوط اور معتبر آواز جو حق و صداقت کی آواز ہے، میری مراد حضرت علامہ کبیر احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی اپنے خطاب سے آپ کے قلوب و اذہان پہ ضرور دستک دیں گے۔ میں اختصار کے ساتھ، چونکہ آپ احباب نے، نوجوانوں آپ نے آج یہ ثابت کیا اس مادہ پرستی کے دور کے اندر، اس فحاشی اور یعنی جب مغربی ایجنڈے کے مطابق میرے ملک پاکستان وطن عزیز کے اندر، اور اب یہ چالیں چلی جا رہی ہیں، اب یہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اب یہ راستے ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب یہ سازشیں اپنے عروج پر جا رہی ہیں۔ میرا یہ خطہ جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے، جو اولیاء کا مسکن ہے، یہ سرزمین جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس سرزمین کے رہنے والے رسول خدا سے انمٹ محبت رکھتے ہیں اور وفا کا اظہار کرتے ہیں، اس سرزمین کو بھی اغیار کے ایجنڈے کے مطابق فحاشی اور یعنی پھیلائی جائے، اور یہاں طرح طرح کے ان نغمات سے لوگوں کے کانوں کو زہر گھولا جائے۔ لیکن نوجوانوں آپ کو داد دیتا ہوں، آپ نے سد باب کر دیا، آپ نے حد فیصل قائم کر دی، آپ نے یہ رکاوٹ آج پیدا کر دی کہ کوئی مائی کا لال جو ہے اس سرزمین کے اندر کسی اغیار کا، کسی مغرب کا کوئی ایجنڈا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
अजीज नौजवानों ने, उमर रशीद ने, फैसल अली एडवोकेट ने, दीगर नौजवानों ने ये बात की, मुझे रोका गया असेंबली में जाने से, कानून साजी की गई और एट 11th आवर तारीख आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एक अनोखा वाकया है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं 1.5 साल जब पहले रिटायर हुआ, मैंने एक्ट इलेक्शन कमीशन एक्ट जो 2020 है उसका मुतालिया किया। मार्च में मैं रिटायर होता हूँ और 2020 के उस एक्ट को मैंने देखा। फिर मैंने मुतल्लिका अथॉरिटी से भी पूछा, उन्होंने कहा कि आपने एक्ट का मुतालिया किया। मैंने कहा मैं जरूर, तो उस पर कोई कदगन और कोई पाबंदी नहीं थी कि मैं रिटायर होने के बाद 2 साल का इंतजार करूं। एक्ट है, कानून है, वो भी असेंबली का पास किया हुआ 2020 का, और उसमें 2 और तरमीम भी की गई थी 2020 के अंदर, लेकिन ये पाबंदी उसमें मौजूद नहीं थी, ये तरमीम मौजूद नहीं थी। और 1.5 साल से मैं जगह जगह खालकाबाद से लेकर पलाकर कोठा तक जगह जगह गया, लोगों के घरों में गया, करिया करिया मोहल्ला मोहल्ला में जाके दस्तक दी और दरवाजे नॉक किए कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पर सिरे पे अकार है, मैदान अमल में है, दीन मुस्तफ़ा आपको आवाज़ें दे रहा है। नौजवानों, बूढ़ों, बच्चों और बेटियों, उठो और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम को सर दूर नहीं होने दो, बुलंद रखो। मैंने ये दस्तक दी और जब गैरों ने देखा तो तलातम मच गया, एक शोर बपा हो गया। ये क्या होने जा रहा है? असेंबली में के अंदर तहरीक लब्बैक की आवाज पहुंचने जा रही है, हम तो ढेर हो जाएंगे। अरे खुद कदम में मैंने शगाफ तो डाल दिया है। अब इंशाअल्लाह ताला नौजवानों, ये मेरी आवाज नहीं है, ये वो आवाज है जिसकी तर्जमानी मैं इसलिए करता हूँ 1400 साल पहले सराय अरब में जब गूंजी थी, रेगिस्तानों में जब गूंजी थी, पहाड़ों में जब गूंजी थी, तो उसने दरियाओं के अंदर भी तलातम बचाकर रख दिया था और पहाड़ों के अंदर भी शगाफ डाल दिए थे और सहराओं के अंदर भी रहत के जर्रे जो है वो कहने पे मजबूर हो गए थे। अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आने लगी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क़यादत है उसको तस्लीम किया गया था। मैं उस नबी का मानने वाला हूँ, गुनहगार तो हो सकता हूँ, मेरे दामन मेरे अमाल में शायद और कोई चीज़ ना हो जो मेरे लिए नजात का बायस बन सके, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह करके कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, मेरे दामन में मोहब्बत मुस्तफ़ा ज़रूर मौजूद है। और तुमने मगरब के परस्तारों, मगरब के एजेंडे को इस वतन अजीज में जिसकी बुनियाद ही कलमा तैयबा पे रखी गई, मदीना मुनव्वरा के बाद रियासत पाकिस्तान मेरा वतन अजीज दूसरा मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर यह मुल्क कायम हुआ। तो तुम भला कि क्या समझते हो, क्या समझते हो 70-72 साल से जो तमाशा किया जा रहा है, जो खेल खेला जा रहा है, क्या इसका मंतकी अंजाम आज ही पहुंच गया है? इसलिए कि अब कोई नौजवान, कोई घर में बैठा हुआ फर्द जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के अलावा कोई निज़ाम कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। तुमने ये समझा कि हम तहरीक लब्बैक की आवाज़ जहाँ खामोश करा देंगे, एक चाल चली। मैं आपको बताना चाहता हूँ 22 जून को, 21 जून को मैंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए और अबुल हसनात एडवोकेट ने भी। हम जानते थे, हम समझते थे कि दुश्मन अपनी मकारियों से शायद हमें इस मैदान से तहरीक लब्बैक को आउट करना चाहता है ताकि ये आवाज़ खामोश हो जाए। तो फिर क्या हुआ? 22 जून को एतराज़ात की तारीख थी रिटर्निंग अफसर के पास। ये जानते हुए तमाम जमातों के उम्मीदवारों ने
नियाजी साहब प्रेस के यहाँ लोग मौजूद होंगे, मीडिया के नोट कर ले इसको, तमाम लोग बाखबर थे कि एक एक्ट पास हो गया मई में, इस मई 2021 में इलेक्शन से चंद रोज पहले एक डाका मारा गया, असेंबली के अंदर सारे डाकू इकट्ठे हो गए, किसको? लब्बैक की आवाज को रोकने के लिए। और फिर क्या हुआ? 22 तारीख को एतराज की तारीख थी कि कोई किसी को किसी के कागजात पे एतराज हो, मेरे कागजात भी जो है वो रिटर्निंग अफसर ने क्लियर कर दिए थे। 22 तारीख को किसी ने एतराज न किया, सब जानते थे, ये चाहते थे कि मैं इलेक्शन लड़ूं इन कागजात की बुनियाद पर, और अदालत आलिया, अदालत उज़्मा का फैसला भी आ चुका है कि एक्ट बाहर रखा जाए। तो मैं चुके कानूनदान हूँ, मैं जानता था कि मैं तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं हो सकता, मैं कानून की पासदारी करने वाला हूँ, हमेशा मैंने अदालतों का एहतराम किया है। तो मैंने फिर हमने यही मुनासिब समझा कि नहीं, अबुल हसनात को इलेक्शन लड़ना चाहिए, ये आवाज़ भी तहरीक लब्बैक की आवाज़ है, इसको भला कौन रोक सकता है? मुझसे ज़्यादा तवाना और मजबूत आवाज़ हो सकती है। तो फिर दुश्मन की चाल को जब हमने नाकाम कर दिया 22 तारीख को, तो फिर ये सरपटा गए, ये क्या हुआ? और आज जगह जगह चालें चली जा रही हैं, और मैं दाद देता हूँ जमीयत उलमा जम्मू कश्मीर, जिसकी बुनियाद पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा पीर मोहम्मद अतीकुर रहमान फैज़पुरी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी। उस जमात के कुछ लोग मफादात की ज़द में आ गए और उन्होंने मफादात वो अपनी जमात जो है वो PTI के हवाले कर दी। तो फिर उस जमात के जो हक परस्त थे उन्होंने अपना इजलास करके सदर जमीयत उलमा जम्मू कश्मीर को बरतरफ करके यह ऐलान किया कि सिर्फ जमीयत उलमा जम्मू कश्मीर ने ही अहले सुन्नत वल जमात के जितने लोग हैं तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों को आज़ाद कश्मीर भर में सपोर्ट करेंगे। यहाँ के भी उनको हज़ीमत का सामना करना पड़ा, दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी, और ये बुत इंशाअल्लाह ताला मुंह के बल जो है वो गिरेंगे, ऊंधे गिरेंगे आपके सामने इंशाअल्लाह ताला। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। नौजवानों, मैं 1.5 साल से ये कहता आया हूँ कि आपका खून गर्म है, आपके अंदर जज्बा सादिक मौजूद है, और आप ईमानी जज्बा से लैस हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के आप परस्तार हैं, हुजूर से आप मोहब्बत रखते हैं। मैं ये हमेशा कहता आया हूँ कि शमा की तरह जिए, बज़्म के आलम में खुद जलें और अगयार को भी दीदाए बीना कर दें, अगयार की आंखों में रोशनी करते। अजीज भाइयों, बच्चों, घर में बैठी हुई मेरी माएँ, बहनें और बेटियाँ, उनको ये मेरा पैगाम है, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक सफ़ेदा सफ़र थी जिसमें बलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर घर जाकर दस्तक दे रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि सुबह फजर के टाइम मदीना मुनव्वरा के अंदर जब मुसलमानों का मरकज़ है, वहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको याद कर रहे हैं। किसी गज़वा में दीन के लिए दीन का परचम सर बुलंद रखने के लिए खून की ज़रूरत पड़ी है, तो दस्तक दे रहे हैं बलाल हबशी। माँ एक घर पे पहुँचते हैं, एक खातून जो है एक नन्हे बच्चे को अपने आगोश में लिए खड़ी हैं। अब पूछते हैं, खातून ज़ारो कतार रोती है, मेरे पास तो कोई नहीं। कुछ रोज़ पहले, कुछ अय्याम पहले, कुछ अर्सा पहले मेरा खामिद तो एक गज़वा में शहीद हो गया और दीन मुस्तफ़ा के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगाई। अब तो मेरी आगोश में एक बच्चा है, भला रसूल खुदा पुकार पर है। तो मायूस थी, परेशान थी, लेकिन क्या था, सुबह हुई, बड़े बड़े तकड़े कड़ियल जवान नौजवानों आपकी तरह रसूल खुदा की बारगाह में लाइन दर लाइन मौजूद हैं, क्यों में मौजूद हैं। एक खातून भी अपने बच्चे को लेकर एक साइड पे खड़ी है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जाती है। आपने किसी सहाबी को यह हुक्म दिया, जाके पूछो वो खातून बारगाह नबी में क्या दरख्वास्त लेके आई है, उसका मदावा किया जाए, उसकी दरख्वास्त पे गौर किया जाए, क्यों न पसीराई बख्शी जाए। पूछा गया, छम छम उसकी आंखों से
आंसू रवा हैं, अर्ज करती है रोते हुए ज़ारो कतार कि रसूल खुदा की बारगाह में बड़े बड़े जमा जो हैं, तमाम जमा जो हैं वो मौजूद हैं इस्लाम की सरबलंदी के लिए और कुफ्र को नेस्तो नाबूद करने के लिए। मेरा दामन खाली है, मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, मैं क्या करूं? मैं कौन सा नजराना पेश करूं अपने आका की बारगाह में? रसूल खुदा को जब ये बताया, सहाबी बताते हैं कि उसकी फरियाद तो ये है, फरमाया जाओ उस खातून को कह दो तेरी ये आरज़ू, ये तेरी तमन्ना पूरी कर ली गई है अल्लाह की बारगाह में। रोज़े महशर तेरा ये बच्चा गाजियों की शफ़े होगा। आज नौजवानों, ये पैगाम है, ये पैगाम मेरा पैगाम नहीं है। दीन आज जो है आपसे कुर्बानी मांगना चाहता है। और मैं ये कहता हूँ, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं जब मैं अपनी जान से, अपनी औलाद से, अपने माल और असबाब से, अपने वालिदैन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और वफा न करूँ, तो फिर वोट तो एक बहुत अदना सा दर्जा है। वफा निभाने का, मोहब्बत के इजहार का वोट तो बहुत अदना सा दर्जा है। वोट दे के 25 जुलाई को कैलेंडर पे मोहर लगा के लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करके अपने नबी से जो है अपनी मोहब्बत को लाजवाल बना दो। फिर कोई डाकू आपके ईमान पे डाका नहीं डाल सकता, आपकी मोहब्बत मुस्तफ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा पे डाका नहीं डाल सकेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा ये आज़्म है, ये आज़्म समीम है इंशाअल्लाह ताला। आप इस बात को जहन में रखें और अपने घर में जाके दलेर हो जाएं। कहीं मुझे आवाज़ें आती हैं बड़ी नहीफ सी, बड़ी कमज़ोर सी, कि हमें बुज़ुर्गों की वजह से, शायद अपने वालिदैन की वजह से नहीं, उनके वालिदैन भी अब समझ चुके हैं, उनके वालिदैन भी अब समझ चुके हैं यही राह हक है, यही सही मंजिल का रास्ता है, इसी रास्ते को वो भी अपनाएंगे। कब तक ये अपने जंगल में लोगों को, कब तक ये इन सड़कों के लिए, कब तक ये वाटर सप्लाई के लिए, कब तक ये बिजली के खंभों के लिए, ट्रांसफार्मर्स के लिए, नौकरियों के लिए मेरे नौजवानों के जहनों को गुलाम बनाएं? कब तक? अब गुलामी का दौर गुजर चुका है, नौजवान फैसला कर चुके हैं। हम तुम्हारे इस लालच को जूते की नोक पे रखते हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सख्त बनाने के लिए। नौजवानों, इकबाल ने आपके लिए पैगाम दिया है और मुतअद्दिद दफ़ा नौजवानों को, जिस समय नौजवानों से मानूस हूँ, इकबाल भी बहुत मानूस थे, उन्हें पता था यही नस्ल है, यही नौजवान हैं जो बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर शगाफ डालते हैं। ये नौजवान हैं जिनकी अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो नजर आती है उनको मंजिल अपनी आसमानों में। नौजवानों, इकबाल ने कहा था, कभी तदब्बर भी किया तूने नौजवान मुस्लिम, कभी तदब्बर भी किया तूने नौजवान मुस्लिम, वो क्या करतू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तुझे पाला था उस कौम ने आगोश मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर रख दूँ अल्फाज में, मगर तेरे ख्याल से फजूतर है ये नज़ारा। तो आज मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन को, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसके दिफाज के लिए तहरीक लब्बैक जो अपना जानदार किरदार अदा कर सकती है, यही है 25 तारीख को कैलेंडर पे मोहर लगा के आप ये साबित करें कि हम किसी और के गुलाम नहीं हो सकते, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, इत्तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वमा अलैना इल्ला